guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about the work of John Donne, that is the sun rising. Sir, one of the most important metaphysical poetry that we're going to do today. इसके concept को clear करना है, and we guys need to do each and everything that is the real requisite for this particular poetry. The sun rising, seriously a state of mind of the lovers, seriously lovers. Those are being disturbed in their love making by none other than the sun. अब पोएट जो है वो एक मेटाफिजिकल पोएट तो सन को ही कंप्लेन करने लगा सीरियसली, एंड ही वाज गिविंग लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन कि भाई तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, तुझे जाना चाहिए उन लोगों के पास जिनको तेरी ज़रूरत है, लाइक द स्कूल गोइंग किड्स, द फार्मर्स, द पुअर पीजेंट्स एंड दोज हु आर रियली रेडी टू डू वर्क. सीरियसली रेडी टू डू वर्क मतलब उनको आराम नहीं करना. एंड व्हाई यू डिस्टर्बिंग अस, वी आर मेकिंग लव, सो आई एम हियर विद माय बिलव्ड एंड यू आर डिस्टर्बिंग अस. सीरियसली your light is coming through the window or through the curtain. Sir, ये नहीं होना चाहिए. Seriously, I really don't want to get disturbed because you know that I am with beloved, तो मेरे को नहीं चाहिए disturbance. यार seriously, sun rising actually a complaint by the poet in his particular poetry. So इस टेस्ट को तो seriously बहुत importantly हम क्या करेंगे, अच्छे से समझ के घूट के पी जाएंगे. तो ये poetry बहुत ज़्यादा expected है. I'll come to the poetry. The sun rising, busy old fool unruly sun. सीरियसली बहुत ही मतलब सन, सूर्य भगवान उनको सीधा बेवकूफ कह रहा है busy old fool unruly sun, why those doors through windows and through curtains call on us. टाइम नहीं है कहीं और जा किसी और को डिस्टर्ब करो. why you disturbing us, we really don't want your presence here. Though much to thy emotions lovers seasons run, so see pandemic vetch go child, late school boys sore pantries. School boys के पास है ना सो रहे हैं, उनको उठा. why disturbing us यार. Then come to the next one. Go tell the court herdsmen that king will ride. जा कोर्ट के herdsmen के जा जिनको किंग की जरूरत है. Call country hands to harvest offense, love all like no season knows no climb, no hours days months which are rakes of time. सर सारी की सारी चीज़ें यहाँ हाईलाइट कर दी. यहाँ क्या कर रहा है, बेसिकली वो सन को ही बेवकूफ़ बोल रहा है, अनरूली बोल रहा है. मतलब सन की जरूरत नहीं है, ही रियली डोंट वांट द सन टू बी देयर. द सन इज कॉलिंग द नरेटर द सन राइजिंग थ्रू विंडोज एंड कर्टेन्स, वी रियली सिंपली डोंट वांट सन्स प्रेजेंस. कह रहा भाई तू जा, सीरियसली देयर इज नो नीड ऑफ यू. तू किसके पास जा, वो स्कूल बिकमिंग अ डे फॉर द थॉमस मैन्स उनके पास जा, स्कूल गोइंग किड्स के पास जा, उनको जाके तू तंग कर. प्लीज डोंट कम हियर एंड फ्रस्ट्रेट अस. यू आर डिस्टर्बिंग अस, सीरीज यू आर डिस्टर्बिंग अस, जो हम नहीं चाह रहे, हमें किस तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. देन जंप टू द नेक्स्ट पार्ट. थाई बीम्स so revered and strong. Please listen only, this is really something very more. Thigh beams so revered and strong, why shouldn't thou think I could eclipse and cloud them with a wink, but that I would not lose her sight so long, if her eyes have not blinded time. I repeat, if her eyes have not blinded time, look and tomorrow late, tell me whether both the Indians of spice and minds. Sir, यहाँ तो Indians भी आ गए seriously, and I love that Indians comes in English poets. Beware thou leftest them, oh lie here with me. Ask for those king whom thou never yesterday, and thou halt here, all here in one bed lay. अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं थोड़ी डिटेल में, अब थोड़ा समझ आएगा. अब मैं कह रहा था मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बताता हूँ विद तसल्ली से, तो शॉर्टकट में नहीं जाते हैं, थोड़ा डिटेल में आते हैं. द नेटर वॉन्ट्स टू शट द सन आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, इट इज ईजिली पॉसिबल टू सिंपली क्लोज द आइज. सब बड़ा आसान है. बच्चों में सोते थे ना, मतलब आई यूज टू स्लीप और सर छत पे सोते थे, तो क्या होता है सन आता है तो आंखें बंद कर लेते टाइट, ऊपर चद्दर कर लेते. मतलब आई डिड दिस, तो आपने कहा सर एक्टिंग, सो आई एम नॉट डूइंग दिस, बट आई एम फीलिंग दैट इट कि रियली सनलाइट को बंद कर ले, तो हम यही करते थे, तो थोड़ी चद्दर ऊपर कर ले. लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि अब तो सनलाइट को देखते हैं, सनलाइट ने डिस्टर्ब कर दी है, उठने के बाद फिर नींद आना डेफिनेटली मुश्किल होता है. The narrator wants to shut the sun out to experience. It is easily possible to simply close the eyes, clear the mind, and forget that they even come. Unfortunately, now they have speakers seize the person and spend the night with. Now they no longer want to close their eyes and not be able to see. Gradually, they are forced to accept the presence of the rising sun. Yes, they are forced to accept the presence of the sun. कि भैया अब sun आ चुका है, now we need to wake up. कि यहाँ पोएट अकेला नहीं है, he is with
his beloved. Can the rest of the verse question the worth of living a bed share with a loved one? They reference the Indian of spice and mine, referring spice flagging the mining operation Eastern, the Western Indies at the time, and seems to suggest that everything will run exactly as it is supposed to, whether they leave their bed or not. वो बेड छोड़ते हैं नहीं छोड़ते, इससे वर्ल्ड को क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो अपनी तरह से अपनी एक्टिविटीज शुरू कर चुका है. एवरीबडी स्टार्ट देयर ओन एक्टिविटीज. नाउ दे आर नॉट बीइंग, सर कहता है किसी तरह से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. आप बेड पे हो, आप क्या कर रहे हो, नोबडी केयर्स, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. तो हमें डिस्टर्ब करना जरूरी क्यों था यार? So they can check the mission that it is at present meaning, or they can remain with each other. चाहे वो अलग होए या वो एक साथ होते हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अब सन राइजिंग के लास्ट पैराग्राफ बताएं, इट्स अ स्मॉल पॉइंट, 3 पैराग्राफ में थी जिसको क्लियर करना है. शी विल ऑल स्टेट, आई रिपीट, शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, आई नथिंग एल्सेस. She is all states and all princes, I nothing else is. Princes do but players. Princes do but players. Compared to this, all honor, mimic, all wealth, alchemy. Those sons aren't half as happy as we. As we. In that the verse contrasted thus. Thine age asks ease, and sin, I repeat, and since thy duties be. To warm the world that's done in a warming us, shine here to us, and thou art everywhere. This bed thy center is, these walls thy spear. Now come to the clear explanation of this particular poetry, and then we're going to have a crust of this particular poetry, ताकि इस poetry में कोई भी doubt ना रहे हमें. So please check out those who have the notes. Please check out from the notes. Those don't have the notes and really want the notes, guys, number दिया गया है, आप उस number को contact करें and you'll get the notes. And notes are not free of cost. You have to pay for the notes first. Come to the point. This verse does much to emphasize the enormous importance and the narrator places on their lover. सर किस चीज़ को highlight करा है? मतलब कौन कौन सी बातें जो highlight की गई हैं? She is everyone everywhere he ever needs to be or no. थोड़ा ज़्यादा रोमांटिक हो गया तो आई कांट हेल्प इट. शी इज़ एवरीवन एवरीवेयर ही एवर नीड्स टू डू और नो, एंड नथिंग एल्स एग्जिस्ट व्हाइल द टू आर टुगेदर. जब दोनों एक साथ होते हैं इनको और कुछ चाहिए नहीं. दे डोंट वांट एनीथिंग, सीरियसली और कुछ नहीं चाहिए इनको. ऑनर एंड वेल्थ बिकम मीनिंगलेस. ऑनर और वेल्थ दोनों के दोनों मीनिंगलेस हो जाते हैं. क्या प्रिंसेस सीम पुअर व्हेन कंपेयर टू व्हाट दे हैव. प्रिंसेस सीम पुअर when compared to what they have. मतलब प्रिंसेस भी उनके आगे कुछ नहीं है, because they have both together, दोनों का प्यार एक साथ है. Returning to the personification of the sun. सब personification मतलब poetry devices, that's really important, जिसको highlight करके बड़ा चढ़ा के हम क्या करते हैं, shine with glorious terms add करते हैं, हम personification को use करते हैं. Of the sun, the narrator addresses it once more, stating the presence is not needed, since its purpose is to warm the world and he feels warm. या तो ये वार्म ही तो करना है वर्ल्ड को. मैं ऑलरेडी वार्म बिकॉज आई एम विद माई बिलव्ड. व्हेन आई एम विद हर तो मुझे कोई और गर्मी नहीं चाहिए. आई रियली हैव दैट वार्मनेस. द सन राइजिंग एंड्स ऑन अ समवॉट क्रिप्टिक नोट बट सजेस्ट दैट द नरेटर यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ 2 people एंड 1 room ओनली. लेकिन उसका वर्ड सिर्फ 2 लोगों के लिए, उसके लिए और उसके बिलव्ड के लिए. जो उसका रूम है ना, वो रूम उसका वर्ल्ड है. द बेड इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. जो बेड है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है. And the walls of the room, its edge, उसके edges वो walls हैं. And when the room is warm, the whole world is warm for them. जब room warm है तो सब कुछ warm है उनके लिए. They don't need any sun. So the sun rising is actually a personified poem where the poet says that he really don't need sun anymore. उसे sun की जरूरत नहीं है. He is really very happy with his beloved. तो वहाँ पे कोई भी intolerance बर्दाश्त नहीं है. चाहे इनटॉलरेंस उसे सन से मिले इन फॉर्म ऑफ सनलाइट, तो सर सनलाइट नहीं चाहिए. ही वॉज नॉट इन नीड ऑफ सनलाइट. वो चाह रहा है भाई मुझे डिस्टर्ब मत कर, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, बट डोंट कम हियर बिकॉज आई रियली डोंट नीड यू. मुझे तेरी जरूरत नहीं है किसी भी एंगल में. एंड आई रियली डोंट नीड यू, व्हाई यू डिस्टर्बिंग अस. हमें ज़रूरत नहीं है ना. तो आप जाओ, आप स्कूल चिल्ड्रंस के पास जाओ, आप फार्मर्स के पास जाओ, आप उन हॉर्समैन के पास जाओ जिनको किंग की ड्यूटी करनी है. गो टू दोज नोबल मैन, दोज आर वेटिंग फॉर द सन टू राइज एंड स्टार्ट
working for the world, but stop disturbing the lovers. आई होप पोइट्री पूरी तरह से क्लियर हुई होगी. तो करना क्या है सर, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे. कमेंट करो, शेयर करो एंड देन गो टू द कमेंट सेक्शन, डन लिखो वहाँ, क्योंकि अगर आपने डन लिखा तो वो सर इट्स अ हैट्स ऑफ मूवमेंट, दैट इज शाउट आउट मूवमेंट, जहाँ पे आपका नाम शाउट आउट किया था लाइव सेशन के अंदर. कैच यू वेरी सून इन अ न्यू वीडियो. बाय गाइस.